Good morning students, 12th class students. Today we are going to start this Rambo book, and today we will not start the first chapter, we will go through second chapter, and that is A Room 10 by 8 written by K.S. Duggal. A Room जिसका साइज था 10 by 8, जिसको किसने लिखा है? K.S. दुग्गल ने. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट K.S. दुग्गल. K.S. दुग्गल is an Indian writer and who has written his novels, his stories not only in English language but also in Punjabi language also. With the name we can judge Duggal. He is Punjabi. He is versatile. What is the meaning of versatile? Having many skills. Having many skills. He is versatile and prolific. What is prolific? Intellectually productive. And एज एन ऑथर हिज आउटपुट इज इमेंस. उसका जो आउटपुट है काफ़ी इमेंस है. ब्रॉड आइडियाज एंड वैल्यूएबल. ही हैज़ पेंड मीन्स ही हैज़ कंपोज्ड. पेंड मीन्स कंपोज्ड more than 500 short stories, 10 novels, 50 short plays and 7 plays, besides several works of literary criticism and 2 volumes of verse. A part of poetry is known as verse, and his autobiography. He is a recipient of several prestigious awards. It means he has been awarded a number of prestigious awards and has also been decorated with Padam Bhushan. और उन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है. किन्हें? K.S. दुग्गल में. Now, what is the story of this chapter? A Room 10 by 8. The story of this chapter, A Room 10 by 8, is based on generation gap. This story tells us that the way we behave with our fathers, forefathers, or we can say our grandfather, parents, we will be behaved in the same manner by our future generation, by our children also. As we can see here idiom, as you sow, so shall you reap. जैसा बोओगे वैसा पाओगे, वैसा काटोगे. ये कहानी कहती है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है. ये कहानी यही है. इन दिस स्टोरी वी विल सी that there is a character Mrs. Malik. एक Mrs. Malik एक कैरेक्टर है who didn't have good behavior towards her mother-in-law. अपनी mother-in-law को छोटे से रूम में रखना चाहती थी. उस रूम का साइज था 10 by 8, जबकि वो एक स्टोर रूम था. एंड शी वांटेड टू यूज द रूम साइज 10 by 8 एज अ लिविंग रूम ऑफ अवर मदर इन लॉ. और मिसेज मलिक ये मानती थी कि मेरी मदर इन लॉ शी इज़ वेरी ओल्ड और ज़्यादा दिन जिएगी नहीं, तो उनकी डेथ के बाद इस रूम को हम क्या बना लेंगे? स्टोर रूम बना लेंगे. ये कहानी किस पर डिपेंड करती है? जनरेशन गैप पर डिपेंड करती है. नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग नाउ. This room might be 10 into 8, said Mrs. Malik, pointing to a square in the draft. Mrs. Malik, she is talking with the architect. वो आर्किटेक्ट से बात कर रही है और कह रही है कि इस रूम की साइज़ कितनी होगी? 10 by 8 की होगी. तो what is draft? It is a kind of out plan, or we can say it is a kind of the drawing of something, or we can say map. Okay, the drawing of something or out plan, anything else, or map also. मिसेज मलिक ने एक मैप की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस रूम की साइज़ कितनी होगी? 10 by 8 की होगी. laying on the table before them. It was the third time she had made this suggestion, and third time, तीसरी बार उन्होंने सजेशन दिया था. It seemed it did register. Register means pay attention, ध्यान देना, on either her husband or architect engaged to design the house. मिसेज मलिक ने तीसरी बार कहा कि इस रूम की साइज़ 10 by 8 होगा. न तो आर्किटेक्ट ने और न ही उनके हस्बैंड ने इस पर ध्यान दिया. What is register? To pay attention. The Maliks, it means Malik family. The Maliks were going to have a house of their own in Delhi. मलिक्स जो परिवार था दिल्ली में अपना मकान कंस्ट्रक्ट करवाने जा रहा था. दे हैड परचेज ए प्लॉट इन मोस्ट फैशनेबल कॉलोनी. और दिल्ली की फैशनेबल कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदा था ऑफ देयर टू टाउन सम टाइम अगो बिफोर सम टाइम. नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली. अब मिस्टर मलिक का फिर से ट्रांसफ़र कहाँ हो गया था? दिल्ली में हो गया था. दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ड. चलो लगे हाथे मकान को ही बनवा लेते हैं. इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स, इट मीन्स इन द डेप्थ ऑफ हर हार्ट. इन द डेप्थ ऑफ हर हार्ट, अपनी दिल की गहराइयों से. मिसेज मलिक ऑल्सो डिसाइडेड दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हाउस. और मिसेज मलिक अपनी दिल की गहराई से सोच रही थी कि मकान बनने के बाद शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली. वो दिल्ली में ही रुकेगी, इवन इफ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन. चाहे उनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र कहीं और ही हो जाए. शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग्स. सिक मीन्स टायर्ड और फेड. शी वॉज कम्प्लीटली फेड अप विद द ट्रांसफ़र ऑफ हर हस्बैंड. अपने हस्बैंड के ट्रांसफ़र से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी वो.
एवरी अदर ईयर दे वर मूव टू अ न्यू प्लेस, हर नए साल उन्हें एक नई जगह जाना पड़ता। नाउ द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप, अब बच्चे बड़े हो गए थे। इट वॉज नॉट डिजायरेबल, इट मीन सुटेबल, इट वॉज नॉट सुटेबल टू शिफ्ट देम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और एवरी ईयर बच्चों का स्कूल शिफ्ट करना, चेंज करना, इट इज़ नॉट सुटेबल और डिजायरेबल। मिसेज मलिक ने अपने हस्बैंड से कहा, इफ़ यू मस्ट, मिस्टर मलिक कुड गो अलोन, कि आप अकेले जाना अगर आपका ट्रांसफ़र होता है तो शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन। और मिसेज मलिक ने कहा कि मैं दिल्ली में सेटल हो जाऊंगी परमानेंटली। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी, और वो कंपनी के लिए किसको रख लेगी? मदर इन लॉ को। लेकिन हम जानते हैं कि मिसेज मलिक का जो एटीट्यूड है वो मदर इन लॉ के प्रति सिंपैथेटिक नहीं है, यानी शी हैज़ रूड बिहेवियर टुवर्ड्स हर मदर इन लॉ। मिसेज मलिक हैड नो, मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन ऑफ इट टू इट। This room might be 10 into 8, Mrs. Malik repeated. Her husband was attending to a telephone call in the adjacent. What is adjacent? Adjacent, D silent है, D silent है यहाँ पर। Adjacent means near, near है ना, कनेक्टेड रूम। मिसेज मलिक ने थर्ड टाइम कहा जब कि इस रूम का साइज 10 into 8 होगा, तो उनके हस्बैंड क्या कर रहे थे? पास के रूम में एक टेलीफोन कॉल अटेंड कर रहे थे। बट दिस इज ए स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक, आर्किटेक्ट ने कहा कि मैडम ये तो एक स्टोर रूम है। यस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, पर ये मेरी मदर इन लॉ का रूम हो सकता है। एंड आफ्टर हर मीन्स आफ्टर हर डेथ इट माइट बी यूज एज ए स्टोर रूम, हम इसको इस स्टोर रूम के रूम में काम में ले लेंगे। द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, आर्किटेक्ट को समझ ही नहीं आया। ही लुक्ड पजल्ड, पजल्ड मीन्स कॉन्फ्यूज्ड। बट मिसेज मलिक ऑब्जर्वेशंस, बट मिसेज ऑब्जर्वेशन Mrs. Why was architect puzzled? This is also most important question for exam. Architect was puzzled because Mrs. Malik wanted to use the room sized 10 by 8 as a living room of her mother-in-law. I mean, my mother-in-law could use the room for the present. As you know, she is old and infirm. Infirm means weak and thin. मिसेज मलिक कह रही हैं आर्किटेक्ट से कि आप देख रहे हैं मेरी जो मदर इन लॉ है वो काफ़ी कमज़ोर है, बीमार है। शी इज़ंट गोइंग टू बी देयर फॉर, वो ज़्यादा जीने वाली तो है नहीं। एंड आफ्टर हर, और उनकी डेथ के बाद, इट कुड बी कन्वर्टेड, इसको हम कन्वर्ट करवा देंगे इनटू अ स्टोर रूम। मिसेज मलिक एक्सप्लेन हॉल्टिंगली, व्हाट इज हॉल्टिंगली? स्टॉपिंगली, धीमे धीमे रुकते हुए। मिस्टर मलिक भी उनके साथ ज्वाइन हो गए। इट सीम्ड व्हाइल टेकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू द सजेशंस, ऐसा लगा कि जब वो टेलीफोन पे बात कर रहे थे उन्होंने इस सजेशन पर अपना विचार दे दिया था। ही टू वॉज द ओपिनियन दैट द स्टोर रूम शुड बी अ लिटिल बिगर। मिस्टर मलिक का भी ये मानना था कि स्टोर रूम थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ कॉमोडियस, व्हाट इज़ कॉमोडियस? स्पेशियस स्टोर रूम। मिस्टर मलिक का मानना था कि स्पेस रूम, जो स्टोर रूम होता है वो स्पेशियस होना चाहिए, सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली। व्हाट इज ट्रंक्स? बॉक्सेस, बक्से, ताकि बक्सों को ईजिली वहाँ से हटाया जा सके। देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट, व्हाट इज़ कन्वीनियंट? कंफर्टेबल टू कीप इट टाइडी, टाइडी मीन्स क्लीन, और बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, कंफर्टेबल रहता है, सुविधाजनक रहता है उसको साफ रखना। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10 into 8, और आखिरकार ये डिसाइड किया कि उस रूम की साइज जो किससे कनेक्टेड है, किचन से, उसका 10 by 8 होगा। द कोर्ट यार्ड वुड बी ए लिटिल नैरोवर, जो आंगन बरामदा है वो थोड़ा सा नैरो सकड़ा हो जाएगा। बट दैट डिडंट मैटर मच, पर उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर, ऑल द रेस्ट जो बची हुई चीज़ें थी सब पूरी हो चुकी थी। एंड प्लान वॉज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉर्पोरेशन, और जो प्लान था वो कॉर्पोरेशन के पास, समिति के पास चला गया था। किसके लिए? अप्रूवल के लिए। मिसेज मलिक टू गेन अनटायरिंग, अनटायरिंग मीन्स विदाउट एनी टायरनेस, बिना किसी थकान के, इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। जब घर का काम चला तो मिसेज मलिक ने अथक उसमें रुचि दिखाई। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट, साइट क्या होता है? SIT, अ प्लेस वेयर वर्क इज अंडर कंस्ट्रक्शन, साइट। विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे शी सुपरवाइज एवरी डिटेल। मिसेज मलिक सारा दिन वहाँ पर अपने अम्ब्रेला को लेकर खड़ी रहती, हर डिटेल को सुपरवाइज करती, ध्यान से देखती। एट टाइम शी वुड गिव अ हैंड, व्हाट इज गिव अ हैंड? टू सपोर्ट और टू हेल्प टू द मेशंस। व्हाट इज मेशंस? अ पर्सन हु वर्क्स ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स एंड सॉइल्स, जो मिट्टी बजरी का काम करता है, मिस्त्री। वो कई बार मेशंस, मिस्त्रियों की मदद करती थी। एंड अदर्स, शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्टिव साइट एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे। सबसे पहले वहाँ आती थी और सबके बाद वहाँ से जाती थी। शी अनश्योर्ड, शी मेड हर सेल्फ श्योर, वो अपने आप को आश्वस्त रखती थी दैट देयर वॉज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल की वेस्टेज तो नहीं हो रही है। एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, व्हाट इज आइडल अबाउट? टू रोम विदाउट एनी पर्पस, कि जो मजदूर हैं वो बिना किसी काम के इधर उधर ना घूमे, ठाले ना बैठे, यानी शी वॉन्टेड टू मेक देम बिजी, वो उन्हें एंगेज रखना चाहती थी। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, बिफोर लॉन्ग मिसेज मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर्स। बिफोर लॉन्ग
मकान बनने के बहुत टाइम पहले मिसेज मलिक ने पहले ही फिक्स कर दिया था कि नए घर में शी वुड हैव न्यू फर्नीचर्स मेड फॉर द हाउस, कि नए घर में नया फर्नीचर आएगा। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर न्यू हाउस, नॉट अ पीस ऑफ इट, कि पुराने घर में नए घर में पुराना फर्नीचर नहीं जाएगा। दे वर स्टिल इन द मिड्स ऑफ प्लान्स, दे वर स्टिल मिड्स ऑफ प्लान्स, इट मीन्स दे वर मेकिंग सम प्लान्स, वो अभी भी प्लान बना रहे थे। टू शिफ्ट व्हेन दे लर्न द हाउस हैड बीन अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, तभी उन्हें पता चला कि उनके हाउस को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, टेक ओवर कर लिया, कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। मिसेज मलिक वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मीन्स एंग्री, मिसेज मलिक को बहुत गुस्सा आया। और ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, वाई वॉज मिसेज मलिक फ्यूरियस? बिकॉज देयर हाउस वॉज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। बट द नेक्स्ट मोमेंट when Mrs. Malik mentioned the rent assessed, what is assessed? Assessed means too much or high. जब मिसेज मलिक ने बताया कि उन्हें एक्सट्रीमली हाई रेंट दिया जाएगा, किराया दिया जाएगा, शी क्वाइटेंड डाउन। व्हाट इज क्वाइटेंड डाउन? शी काम डाउन, वो शांत हो गई। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस शी हैड कल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड मीन्स एडोप्टेड, है ना, लव फॉर हर और प्रोड्यूस्ड लव फॉर हर नेबर्स। जब मकान का काम चल रहा था तो उसने अपने पड़ोसियों के साथ और मेड्स फ्रेंड्स और कॉलोनी के लोगों के साथ अच्छा संबंध स्थापित कर लिया था, कल्टीवेट कर लिया था। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग द हाउस, फॉर डूइंग स हाउस, यानी घर के डेकोरेशन के लिए वो काफ़ी प्लान सोचा करती थी। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, हर चीज़ को उन्हें भुला देना पड़ा। क्यों? बिकॉज देयर हाउस वॉज कैप्चर्ड और एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। देन दे वर ट्रांसफर टू फ्रॉम दिल्ली, उसके बाद उनका ट्रांसफर दिल्ली से हो गया। मिसेज मलिक वॉज हैप्पी, शी वुड नो मोर सी हर हाउस, मिसेज मलिक को इस बात का बहुत खुशी है कि अब वो घर को सामने देख तो नहीं पाएगी, अच्छा है। रिग्रेट नॉट बीइंग, रिग्रेट रिमेंट पश्चाताप होना, टू नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, उसे दुख था कि उस घर में रह नहीं पाई। एंड देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल्स, इट मीन सफिशिएंट रेंट, फील कंसोल्ड, उसने अपने आप को कंसोल्ड महसूस किया, यानी अपने आप को उसने कंफर्टेबल फील किया, आश्वस्त महसूस किया। ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे हैड टू वेट फॉर मेनी ईयर्स फॉर अनदर टर्म फॉर पोस्टिंग इन दिल्ली। इन द मीन वाइल मिसेज मलिक्स फादर इन लॉ पास्ट अवे, जब मिस्टर मलिक का फिर से दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ तो तब तक उनकी जो मदर थी, यानी मिसेज मलिक की मदर इन लॉ, उनका डेथ हो गया। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, मिसेज मलिक की बेटी की शादी हो गई। इन ए वे दे वर लकी टू दैट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड बाय द गवर्नमेंट, उन्हें इस बात की खुशी है कि घर अभी भी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। प्राइवेट टेनेंट्स, जो प्राइवेट किराएदार होते हैं, आर सच हेडेक, वो सरदर्दी होते हैं। देयर इज़ नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, उनकी डिमांड्स का, कंप्लेंट्स का कोई एंड नहीं होता है। एंड देन दे आर मोर ऑफन देट नॉट रेगुलर इन पेमेंट ऑफ रेंट, और मिसेज मलिक का मानना था कि जो प्राइवेट किराएदार होते हैं वो टाइम पर किराया देते भी नहीं हैं। मिसेज मलिक हाउस हैव बीन रिक्विजेंट, रिक्विजेंट मीन्स व्हाट इज रिक्विजेंट? यानी कि कैप्चर्ड और टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। उनका घर आप जानते हैं कि रिक्विजिशन कर लिया गया था, यानी कि टेकन ओवर घर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया था। लेकिन रेंट वॉज क्रेडिट, रेंट को क्रेडिट कर, रेंट जो किराया था वो क्रेडिट हो जाता, डिपॉजिट हो जाता, जमा हो जाता टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, अब बेटे की शादी होना बाकी था। मिस्टर मलिक थॉट दे वुड रेदर बी डन विद इट बिफोर इट रिटायर्ड, और मिस्टर मलिक को लगा कि मेरे रिटायरमेंट से पहले ही ये शादी हो जाए, ज़्यादा अच्छा। देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके बेटे की शादी हो गई। Mr. Malik had retired from service, but their house had not been released. Release means vacated. उनके घर को रिलीज नहीं किया गया by the government. Mr. and Mrs. Malik lived with their son and daughter-in-law in the rented house. Mr. Malik was still fighting with the government for the release of the house when his end came. मिस्टर मलिक अपनी मौत के आखिरी क्षण तक गवर्नमेंट से लड़ते रहे अपने मकान को खाली करवाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और उनकी भी डेथ हो गई। ही पास्ट अवे, ही डाइड विदाउट बीइंग एबल टू लिव इन हिज हाउस इवन फॉर अ डे। और मिस्टर मलिक अपने घर में एक भी दिन बिना रहे मर चुके थे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नाउ विद इन 3 months द हाउस वॉज डी रिक्विजेंट्स, इट मीन्स वैकेंटेड। घर ने क्या, गवर्नमेंट ने क्या किया, उस मकान को डी रिक्विजेंट कर दिया, यानी कि क्या कर दिया? वैकेंट कर दिया, रिलीज कर दिया, घर को रिलीज कर दिया। मिस्टर मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर, कीनर इज मीन्स मोर एक्साइटेड, ये सुपर कंपेरेटिव डिग्री है। एंड मिसेज मलिक टू शिफ्ट टू हर ओन हाउस, मिसेज मलिक की बेटा देखिए, मिसेज मलिक की जो मदर इन लॉ तो वो तो ख़त्म हो गई, अब मिसेज मलिक खुद ही एक मदर इन लॉ बन गई, और उनकी डॉटर इन लॉ जो आ गई वो ज़्यादा एक्साइटेड थी उस घर में रहने के लिए। रिमेनिंग पार्ट वी विल डन, इट विल बी डन टुमारो। टिल देन थैंक यू।